सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है भाई, आपको अगर ब्रांड स्टार्ट करना है ना, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओ। जिसको शौक है ना उसी के पास होना चाहिए। लाइक पैथे फिले, लाइक मतलब उसी के पास है वो घड़ी जो मतलब ऑलरेडी 4 रोलेक्स ले चुका है। जिसने डेल्टा 3 चेंज कर दिया, दे विल मेक बिग मनी। 30,000 वाले परफ्यूम जो बेच रहे हैं उन्हें हर किसी को बेचना ही नहीं। लाइक आई हैव अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 700 परफ्यूम। फील लाइक आई एम शज़ैम फॉर परफ्यूम। मैंने इतनी रिसर्च कर लिया। गुच्ची, इवन लुई विटॉन, इवन एमोआज, इवन बायरेडो, इवन डिप्टीक, इवन लुनेर। What is that one gap that is still left unexplored in the perfume industry? जो saying that I'm the founder and co-founder of a brand is very aesthetic in today's era में। अगर आप कंज्यूमर को लेजी बना रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो। अगर आपको SRK का इम्पैक्ट समझना है तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। Just because वनीला लिखा है doesn't mean it will sell for sure. Welcome to yet another episode by Just Because. Today we are in conversation with Shashank Jain, the founder of Lunaire Perfumes. And Lunaire believes in blending fragrances, especially for the Indian skin. So let's just get straight into it. So Shashank, tell us how and why Lunaire happened. So it's a very interesting story. It's basically it's a combination of 2-3 events. So I'll quickly go back to the time. It was about COVID. There was a viral app called Clubhouse, right? So just to pass my time, I used to go into random rooms, and that's how I started slowly started making connection with world's biggest perfumers. Like I was friends with perfumers who make perfume for Gucci, Prada, LV, and till COVID, I just knew that perfumes are either good or bad for me, right? मेरे को तब तक कुछ आइडिया नहीं था कि परफ्यूम्स वुडी होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्लोरल होते हैं. आई टुक इट एज लाइट कॉन्वर्सेशन, एज जस्ट अनदर कॉन्वर्सेशन, राइट? सो दे गिव मी सो मच knowledge and I had nothing to do in COVID except just smelling perfumes. And that's how I started taking out my collection. People used to give me a lot of perfumes, so I took out a lot of my collected perfumes and I started smelling the perfumes and I got to know कि यार एक्चुअली इसमें वुडी स्मेल है, इसमें फ्लोरल है, इसमें एक्वेटिक है. सो दिस इज बेस लेवल लाइक नॉलेज विच एवरीवन हैज़, बट आई वाज लैकिंग दैट. देन आई यूज्ड टू रीड मोर अबाउट कि फ्लोरल है तो कौन सा फ्लावर है, इसमें जैस्मिन है, इसमें मैग्नोलिया है, इसमें लिली है. तो ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. देन आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग मोर विद द परफ्यूमर्स एंड स्टफ. And as soon as the lockdown went over, then I used to go out at least 4 to 5 hours daily for every possible perfume stores in Delhi, Parcos, Sentido, Sephora, Nykaa and stuff. And it was just my only job to do like 4 to 5 hours of smelling random perfumes. मतलब इट वॉज थोड़ा सा वियर्ड भी था कि यार सेल्स मैन भी सोचता था रोज़ आ जाता है परफ्यूम लेता है नहीं है तो टाइप्स. तो थोड़ा बेशरम बनना पड़ा कि कुछ सीखना था, तो बेशरम बना मैं. तो ऐसे करके इट्स बीन लाइक 6-7 months यार. आई जस्ट केप्ट स्मेलिंग 4 hours डेली. So that's how my nose became very strong. And when I said it's a combination of 2-3 stories, this is one story. And second story is yeah, I used to use deos called Axe, fog and Axe, right? So when I was in college, one of my friends was using Cool Water, Davidoff Cool Water. So I just smelled Cool Water for the first time, and वो actually मेरी purchasing power से बहुत ज़्यादा मतलब it was out of my purchasing power. And 2,000 रुपये का परफ्यूम मैं नहीं खरीद सकता था, मैं 300 रुपये का Axe लगाता था. And I took it just as a random perfume, right? So graduation went by. I went to University of Manchester for master, and I smelled that perfume after 3 years. And that next 5 seconds, I was visually with that friend in my undergraduation, and I was stunned. I was stunned कि यार ऐसे possible कैसे हो सकती है. मैं visually वापस undergrad में पहुंच चुका हूँ सिर्फ एक sniff of cool water से. And that's how it's tried यार. I think it has something to do with the memories. So why memories and fragrances have a combination is, out of all the 5 senses, only nose is directly related to the cells of the brains and the nerves of the brain. So that's how brain has the capability of storing memories through fragrances, through the sense of smell. So it is the strongest sense out of the 5 senses, and it has that ability to manipulate the brain's nerves as well. So that's how you store smells in fragrances, right? So मैं इन 2-3 इवेंट्स के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड होता गया कि यार ऐसा मतलब परफ्यूम कैन ब्रिंग बैक द मेमोरीज. सो दैट
आफ्टर दैट कूल वाटर इंसिडेंट आई मेड अ रूल इन माई लाइफ कि यार हर फेज या हर इवेंट का ना लाइफ में मेरा बस एक ही परफ्यूम हुआ, चाहे वो कितना महंगा चाहे कितना सस्ता हो, बट मैं परफ्यूम्स रिपीट नहीं करूँगा. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में मास्टर्स कर रहा हूँ, तो द परफ्यूम आई यूज्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इज नेवर रिपीटेड बाय मी आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. क्योंकि if I would want to visit University of Manchester phase of my life visually there tomorrow, then I can have a sniff of that perfume. I was using Gucci Guilty by that time, and I can instantly go back. But if I would sniff daily Gucci Guilty, then I would override the memories of present to the memories I made in University of Manchester with Gucci Guilty. So that's how I kept. एक तो मुझे बहुत नॉलेज मिल गई, दूसरी तरफ मेरे को बहुत ज़्यादा कनेक्शंस मिल गए, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो एक लास्ट स्टेप ही बचा था डैड से पूछना कि कैन आई जस्ट स्टार्ट परफ्यूम बिजनेस, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस एंड I thought I have to be there in like that business because I'm the only one who is responsible to take this business further. And touchwood, my family and my dad has been very like supportive, and they took a very huge bet that he's still handling the business, thinking that I would do something big in perfume. So that's how I got the support. And all these combinations of, you know, luck, you say, knowledge, connections, incidents, and the flashbacks, constant flashbacks I used to get through smelling the old perfumes which I smelled 2-3 years ago. So this combination and my persistence and consistency and thoda sa ziddipan took me this far To build Lunaire. to start building Lunaire. To It's start day building one. Lunaire. Yeah. So कौन से साल में आपने स्टार्ट करा था एक्चुअली बिल्ड So 2020 COVID. 20 में. Yeah. May 2020 You was the remember first perfumer connection I made on Clubhouse. on Clubhouse. Yeah. So as you mentioned that you did your masters in Manchester. So what course you did and how was it? I did masters in entrepreneurship and management and it was good. मतलब वहाँ का कोई educational knowledge कुछ काम नहीं आया, honestly speaking. I did masters in entrepreneurship, but वहाँ के जो contacts है ना, that contacts, and the best thing I got out of University of Manchester is the connections I made and the thinking ability I got. I mean, my thinking was very small. I always used to think that यार सब कुछ है life में, I'm very blessed and stuff. But the people I used to hang out with made me realize there's so much to achieve in life. Even if you have anything, but you're still at day one, right? So यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर ने मुझे दो चीज़ दी है, एक कनेक्शंस और एक मेरे को बड़ी सोच. Education, knowledge, I don't think so. It's waste of, I think, money on the course. So like do you see yourself anytime living in Manchester? For sure, How for is sure. it to live? It was a student city. मतलब I used to travel back and forth to London. So during the weekdays I used to be in Manchester, and during the weekends I used to go to London to visit my friends because all my friends were in London. But London is very busy and corporate Fast city. city. Yeah, and Manchester is very slow and student city. So of course both the cities have different vibes, but I would definitely go back. I mean, once I will be settled and stable in my career, I would definitely autopilot my business and go there for 3-4 months to experience those memories again, because I'm someone who is chasing memories. I mean, just like perfumes, I'm just chasing memories. I want to relive what I lived before. So tell me, Shashank, while you were building Lunaire, what was the most exciting part of the process where you were like कि this is why I'm doing it? वो अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि ये करना था, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है. वो प्रोसेस में ऐसा क्या एक पार्ट था जब आपको ये फीलिंग आई? Yeah, honestly, there are a lot of parts. Like I always saw beauty or e-commerce. I was always a consumer, especially for the beauty. I mean, perfumes, clothes. But going on the other side, behind how D2C operates, it's genuinely a lot of things to learn. It's whole interesting, right? मतलब बहुत crazy. It's a very struggling part, but I'm learning a lot in this journey, and it's crazy. Like I have a collection of more than 700 perfumes, and that is very proud to say. I mean, you asked what's the best part. I get to smell, at least 50 new perfumes every month. So that is something very beautiful. I mean,
हर परफ्यूम की एक अलग फीलिंग्स है, मतलब अभी हम परफ्यूम्स की मेमोरीज से बात कर रहे थे, बट जो परफ्यूम का फर्स्ट स्निफ आपको जो फील देता है ना, इट्स एक्सेप्शनल. मतलब यू कैन feel that you are in Paris, sitting here smelling the right perfume who can affiliate your memories or the thoughts to Paris. So that's how every perfume at Lunaire has a story behind its creation. Just like I'll tell you, I've written on this perfume, feels like an after party at Met Gala. So basically it's a very early stage execution of this idea, but I would love to take this further. If you smell this perfume, if you wear this perfume for the first time, right, and I would highly recommend you would just read that sentence closing your eyes while the first sniff, right? You'll definitely feel, I would love you to try for this. If you would smell this perfume, and you have been working at Lunaire with Lunaire since 2 years, but I'm sure I never made you try this, but you should do this. Close your eyes and say that sentence once again in your head. You will definitely feel you are just premiumness you are just living in that Met Gala moment. And I mean, it's a long and hard process to get there. It's like meditation, it's like yoga. It takes a lot of efforts, but once you start feeling the memories attached or the experiences attached to the perfumes, it's different. You will start taking perfumes in a different language altogether. एक brand है MOH, right? वो perfume किसी को पसंद नहीं आएगा, I'm pretty sure. And that perfume is minimum starting price of that perfume is 50k for 50 ml, right? But they are selling at that price for a reason, because it's an acquired taste. मतलब वो सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ आ सकती है. So I always take feedback of people who are very new to perfumes while launching new perfumes, because what I like is not liked by the masses, right? So that's why I don't prefer selecting my new collection or upcoming collection by myself. So I would ask random people to give feedback on the perfume, because at the end of the day they are the customers. क्योंकि आपका जो ओपिनियन होगा वो किसी को समझ That's very acquired, yeah. That will not sell at all. नहीं आएगा वो समझ. That will not sell at all. So Shashank, tell me, what has been the turning point of Lunaire till now? Yeah, there is turning point every day. I'm not lying. I feel every day as my day one. It's a turning point. मतलब जो मेरी कल नॉलेज थी वो आज बेकार है, वो बेकार है, कुछ काम की नहीं है. Elaborate. It's like यार, अगर मैंने देखा कि ये परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बिक रहा है, तो वो परफ्यूम सिर्फ शायद स्मेल की वजह से नहीं बिक रहा, वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, बट वो आज बेकार है क्योंकि मुझे पता चला वो परफ्यूम तो नाम की वजह से बिक रहा था, है ना? तो whatever you know और whatever you knew yesterday is very old knowledge. नाम की वजह से बिक रहा था. कैन यू एक्सप्लेन इट मोर? यार बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, जैसे एक बायरिडो ब्रांड है, उसके एक परफ्यूम का नाम है रोज ऑफ नो मैंस लैंड. रोज ऑफ नो मैंस लैंड. आई मीन एक नाम में ही कहानी है. मतलब मैंने वो परफ्यूम सिर्फ लिया ही इसलिए कि वो उसका नाम ऐसा है, राइट? सो नाम से भी बहुत परफ्यूम्स बिकते हैं. लाइक आप वनीला लगा दो, आप मस्क लगा दो, आप समथिंग लाइक एवेंटस का थोड़ा नाम चेंज करके एडवेंटस लगा दो. नाम से बहुत चीज़ें बिकती हैं. आइदर इंस्पायर होके कि यार एडवेंटस है तो एवेंटस जैसा होगा, है ना, या फिर वनीला तो कैन नेवर गो रॉन्ग. तो नाम से बहुत परफ्यूम्स बिकते हैं, चाहे उसमें वनीला ना डाला हो, बट बहुत ब्रांड ऐसे कभी कभार करते हैं. चाहे वनीला का बेस नोट भी हो बट वो इतना डोमिनेंट ना हो, बट अगर वनीला उस पर लिखा है डजंट मीन उसमें वनीला का नोट डोमिनेंट है. वनीला होगा बट डोमिनेंट नोट नहीं हो सकता. वो बेचने के लिए कभी कभी इट्स अ सेलिंग स्ट्रैटेजी. ऐसे कौन से 3 नोट्स है जो आपको लगता है कि इंडियन कंज्यूमर बस वो नोट देख के ले लेगा वो परफ्यूम? वनीला, एक्वा एंड फ्लोरल. Vanilla, aqua and floral. Aqua for male, vanilla for female and floral for female. Floral for female. कुछ भी डाल दो, ये तीनों बिकेंगे ही बिकेंगे. मतलब बिकेंगे नहीं यार. बहुत इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक स्मेल होती है, एक नेमिंग होती है, एक बेचने वाले का कॉन्फिडेंस होता है, एक ग्राफिक्स. आज सबसे ज़्यादा विजुअल्स आपके कैसे हैं परफ्यूम के. I see a lot of amazing perfumes having the worst visuals are not selling at all. I see a lot of dupes. I see a lot of cheap perfumes having good graphic designer in the house, having the best visuals, are selling crazy. So there is a combination of a lot of things, right? And I think the best way to decode is to think in a way कि यार कंज्यूमर क्या चाहता है, सोचता है. मुझे क्या बेचना है वो नहीं बिकेगा, कंज्यूमर को क्या चाहिए वो बिकेगा, राइट? सो
when you said कि यार कुछ भी बिकता है, वनीला बिकता है, नहीं, there are thousands of vanilla perfumes, नहीं. अगर आप राइट प्राइस पे हो, राइट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट विजुअल्स के साथ हो, राइट, या आपका ब्रांड नेम चल चुका है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आपके इंटेंशंस राइट है, सबसे बड़ी बात यार. मतलब मैंने देखा है कि कितना भी अच्छा बिजनेस मॉड्यूल, अगर फाउंडर के इंटेंशंस राइट नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, है ना, तो वो फेल होगा ही होगा एक दिन. तो दैट मैटर्स अलॉट कि आपके इंटेंशंस कितने ज़्यादा प्योर है. मतलब आई बिलीव यार आई एम हेयर टू ऐड वैल्यू थ्रू लुनैर. यार ठीक है, पैसा एक मोटिव है, बट जब तक आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, यू विल नॉट गेट बेनिफिट, you will not earn money at all. So when answering back to your question, vanilla, aqua, floral, they are the top selling notes in India currently, but it doesn't mean कि यार vanilla लिखा है तो बिकेगा ही बिकेगा. बहुत सा just because vanilla लिखा है doesn't mean it will sell for sure. जैसे आपने बोला था कि आपको ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्योंकि तो ऐसी क्या चीज़ है जो, क्योंकि परफ्यूम्स आप ऑनलाइन बेच रहे हो, आप उसको स्मेल तो कर नहीं सकते, तो ऐसा क्या आप मतलब, या कोई बंदा नायका कोई मार्केट प्लेस पे देखे, या आप अपनी वेबसाइट पे लिखो कि आपको आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको लगेगा कि वो बिकेगी इस इन्फॉर्मेशन से, चाहे वो नोट्स ना हो. मतलब नोट्स के अलावा आई एम आस्किंग कि ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन है जो इंडियन कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है. सिर्फ प्राइस. सिर्फ प्राइस सस्ता दे दो बस आप. मतलब नो लॉन्ग लास्टिंग, नो सर्टिफिकेशन. नहीं भाई, आप सिर्फ सस्ता दे दो. सेकंड क्वेश्चन इज लॉन्ग लास्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस, लॉन्ग लास्टिंग, फिर पैकेजिंग. स्मेल तो पता नहीं बहुत देर बाद में आती है परफ्यूम बेचते हुए. हाँ, आई एम टेलिंग यू. तो प्राइस, एज यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इंडिया में आज की डेट में 300 रुपये की भी परफ्यूम है, 3000 की भी है, 30,000 की भी है. तो 300 रुपये की परफ्यूम में और 3000 रुपये की परफ्यूम में क्या फ़र्क है? यार पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. मतलब स्मेल से ज़्यादा आपको 300 रुपये भी कभी परफ्यूम एवेंटस या कूल वाटर की कॉपी मिल जाएगा, आपको 10,000 का भी मिल जाएगा, ठीक है. बट 2-3 चीज़ें मैटर करती है. लॉन्ग लास्टिंगनेस तो मैटर करती है, बट पैकेजिंग बहुत मैटर करती है. जैसे वी यूज़ डायमंड पॉलिश्ड बॉटल्स, वी इम्पोर्ट बॉटल्स फ्रॉम इटली एंड चाइना, राइट, एंड एवरी बॉटल इज़ हैंड क्राफ्टेड. कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मतलब इंडियन मेड बॉटल्स है. वी माइट ऑल्सो यूज़ इंडियन मेड बॉटल्स इन फ्यूचर. मतलब इट डिपेंड्स, आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो ड्यूटीज़, ठीक है, लॉजिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग आपकी रिजिड बॉक्स है, नॉर्मल बॉक्स है, मतलब इट मैटर्स अलॉट. सारी कॉस्ट ऐड होती हैं. फिर डिपेंड करता है यार आप D2C में ऑनलाइन खुद बेच रहे हो या कुछ ब्रांड्स है सिर्फ मार्केट प्लेसेस पे बिक रहे हैं, तो वहाँ मार्केटिंग एक्सपेंस थोड़ा कम है, डिपेंड्स लाइक एज कम्पेयर टू मार्केटिंग एक्सपेंस ऑन मेटा. तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यार वो 300 रुपये का क्यों है, वो 3000 रुपये का क्यों है. कुछ लोग 300 का प्रोडक्ट बना के भी 3000 का बेच रहे हैं, और कुछ लोग, सच बता रहा हूँ, 1800 रुपये का प्रोडक्ट बना के भी 1500 का बेच रहे हैं टू कैप्चर द मार्केट. मतलब वो पर्सनल स्ट्रैटेजी है ब्रांड की, उसने उतने का परफ्यूम क्यों रखा है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग भी मैटर करती है और उसकी स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है. बट एज अ जनरल आंसर, 300 रुपये और 3000 रुपये के परफ्यूम में डिफरेंस बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग का बहुत ज़्यादा है. जितना ज़्यादा महंगा परफ्यूम उतने ज़्यादा नेचुरल्स उसमें होते हैं, और जितना सस्ता परफ्यूम्स उतना सिंथेटिक्स उसमें ज़्यादा होते हैं. ये ग्लोबल आंसर है. और इंडियन आंसर बेसिकली मेरे हिसाब से पैकेजिंग का बहुत मैटर करता है. अगर मैं रिजिड बॉक्स हटा दूँ और उसको नॉर्मल बॉक्स कर दूँ तो आई कैन सेव कॉस्ट, तो मैं उस चीज़ में थोड़ा परफ्यूम प्राइस कम ले सकता हूँ. बट आई वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड इन अ गिफ्टिंग कैटेगरी, तो थोड़ा सा रिजिड बॉक्स कंपल्सरी है मेरे लिए. तो एवरीथिंग मतलब हैज़ अ इनपुट इन द प्राइसिंग. लेकिन लॉन्ग लास्टिंग और ऑयल कॉन्सेंट्रेशन और उसमें क्या फ़र्क है? मतलब एज एन कि अगर मैं 300 रुपये का परफ्यूम मैंने इस हाथ में लगाया, मैंने 3000 रुपये का परफ्यूम इस हाथ में लगाया, और फिर मैं 6 घंटे बाद स्मेल कर रही हूँ, तो क्या फ़र्क लगेगा मुझे? मतलब ये एक बहुत एक्सपेंसिव नॉलेज है जो मुझे बहुत एक्सपीरियंस के बाद आई है. बेसिकली एक अच्छे ऑयल की निशानी, एक अच्छे परफ्यूम की निशानी होती है कितना वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है स्मेल. मतलब आपने जो 300 रुपये का परफ्यूम लेफ्ट हैंड पे लगाया, आपने जो 3000 रुपये का परफ्यूम राइट हैंड पे लगाया है, 6 hours later you might smell some synthetic here, but you will smell a totally different smell
after 6 hours. मतलब this perfume will evaluate and convert, you know, it will go deeper and deeper. It might जैसे it might start fresh but it will go floral, it will then go woody in the end. But अगर जो 300 रुपए का परफ्यूम है ना, वो परफ्यूम थ्रू आउट फ्रेश ही स्मेल करेगा. उसमें वो चेंज नहीं होगा. या महंगे ऑयल की निशानी ही यही है कि वो कितना ज़्यादा चेंज कर रहा है स्मेल. उसे कहते हैं टॉप नोट्स, मिड नोट्स एंड बेस नोट्स, राइट. टॉप नोट मीन्स जो आप 0 to 1 आवर तक स्मेल करते हो, मिड नोट्स 1 to 2 आवर्स तक स्मेल करते हो, एंड बेस नोट्स आर जो आपके कपड़े पे नेक्स्ट डे भी स्मेल आती है या 8 घंटे तक स्मेल आती है. तो तीनों डिफरेंट होते हैं. देयर इज अ परफ्यूम हायरार्की कि टॉप नोट अगर एक्वेटिक है, ठीक है, सो टॉप नोट्स आर द नोट्स जो इवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं केमिस्ट्री वाइज, दैट्स व्हाई दे आर एक्वेटिक नोट्स, सिट्रस नोट्स. मिड नोट्स आर थोड़ा फ्लोरल, फ्रूटी, एंड बेस नोट्स आर जो बहुत कंपैरेटिवली केमिस्ट्री इक्वेशन वाइज दे इवेपोरेट थोड़ा सा लेट, विच आर वुडी नोट्स, एम्बर नोट्स एंड ऊड्स. सो दे आर बेस नोट्स. अगर आप बहुत सस्ता परफ्यूम लगा रहे हो तो यार वो थ्रू आउट एक ही या मैक्सिमम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और जितना महंगा परफ्यूम लगाओगे वो उतना ज़्यादा इवॉल्व होता जाएगा. तो ये मेन निशानी है जो मेरे को बहुत टाइम बाद ब्रांड लॉन्च करने के बाद तक भी नहीं पता था. मतलब धीरे धीरे समझ आया विद एक्सपीरियंस. और 3000 और 30,000 में क्या फ़र्क होगा? पहली बात तो एस्पिरेशन. दे आर सेलिंग एस्पिरेशन, दे आर नॉट सेलिंग परफ्यूम्स, नंबर 1. एंड यार 30,000 वाले परफ्यूम जो बेच रहे हैं उन्हें हर किसी को बेचना ही नहीं है. उन्हें वो एक्वायर्ड टेस्ट जो मैंने आपको बात करा ना, उस नीश को बेचना है. कि जिसको शौक है ना उसी के पास होना चाहिए. लाइक पैथे फिले, लाइक मतलब उसी के पास है वो घड़ी जो मतलब ऑलरेडी 4 रोलेक्स ले चुका है. आप समझ रहे हो. उसको बेचना ही नहीं कि आपके पास एक भी घड़ी नहीं और आपको पीपी चाहिए, वो नहीं बेचेगा आपको. सो ऐसे बहुत सारे परफ्यूम ब्रांड्स हैं, रोजा डॉव, एमोआज, है ना. तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम ब्रांड्स एंड आई डोंट थिंक सो as much as I can see that they want to sell to everyone. So थोड़ा सा वो रीच से भी बाहर लेके जाना चाहते हैं. प्लस एक्चुअली में उनके नेचुरल क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. लाइक दे यूज एक्चुअली में एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव ऑयल कॉन्सेंट्रेशन. वो उनकी वेबसाइट और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन देख के ही पता लग जाता है. एग्जैक्टली. बट आई नो सम परफ्यूम्स जिनके सच में मार्केटिंग और वेबसाइट बहुत गंदी है इंटरनेशनल लेवल पे, बट उनके प्राइसिंग 25K से स्टार्ट होते हैं. और वो परफ्यूम्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं बिकॉज द ओनली थिंग दे आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ इज जस्ट द ऑयल इनसाइड. यार एग्जाम्पल आप देख लो डिप्टीक, आप देख लो बायरीडो, आप देख लो एमोआज. मतलब ये लोग ऑयल्स में मेरे हिसाब से 70-80% पैसा लगा देते हैं और 20-30% दे स्पेंड ऑन मार्केटिंग. एंड आई थिंक दे बिलीव ऑन वर्ड ऑफ माउथ और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, है ना, मोर देन कि यार वो मेटा पे एड्स चला रहे हैं या वो मार्केट प्लेसेस पे एड्स चला रहे हैं. उनको नहीं फ़र्क पड़ता. दे फोकस ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑयल्स, quality of oils. As you mentioned Diptyque, we all know that Shah Rukh Khan has been very vocal that it's his go-to scent. If we talk about any influencer, say Bhuvan Bam, he is loved and been respected by every other Indian on a very huge level. So if say he talks about a fragrance or any brand very organically and he proves कि it's not sponsored, he actually loves the fragrance and he actually uses it every day, it's his scent. So कुछ वैसा impact आएगा. Does the top influencers have that power? यार 100% हम कंपेयर नहीं कर सकते SRK का इम्पैक्ट और किसी भी, नॉट भुवन बाम बट एनी किसी भी क्रिएटर का इम्पैक्ट, बिकॉज SRK इज अ लेगेसी एंड दीज पीपल आर बिल्डिंग द लेगेसी. देयर इज अ डिफरेंस, राइट. अगर आपको SRK का इम्पैक्ट समझना है तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ. सो देयर इज अ न्यू डिप्टीक स्टोर इन आई थिंक चाणक्य मॉल. आई वेंट देयर and just like my another research, and I went there and I was doing the research about what's the best selling perfume in your store and stuff, and I was shocked to hear that it's still that Tam Dao perfume he was talking about, SRK was talking about. And that guy, I cannot name, but that guy, salesperson, told me that there's a big celebrity who came into the store yesterday and they said कि यार वो SRK जो perfume लगाता है वो देना. And he came with the vibe, that celebrity came with the vibe कि यार SRK वाले perfume देना. So he's like, मतलब 75% of the Diptyque store की जो सेल है वो Tam Dao की है, and उसमें से 75 में से 100% सेल सिर्फ SRK के रेफरेंस से आती है. So that is the impact of SRK. And when you say कि यार कोई क्रिएटर, बड़े से बड़ा क्रिएटर इम्पैक्ट कर पाएगा, तो यस, इवन
people with 2000 followers can impact the sales if they are very authentic. The kick here is they have to be authentic. A lot of creators in our history also authentically promoted because they loved the perfume. So when we talk about the impact of the creators, 100% they have a huge impact, unimaginable impact on the sales of the small homegrown D2C brands, because even the smallest and the biggest creators have organically promoted Lunaire, and we saw a lot of pump in sales on those particular days. Just like some creator last week promoted about the Oud Infini, that too about the first from the first collection, which we even discontinued the packaging. We continued the smell, but we discontinued the packaging. So he promoted a scent which was on sale 1 year ago in Lunaire, right? And he promoted that perfume very authentically because he loved the perfume. Being a creator, I would appreciate behind his back, he still buys the perfume and he bought the perfume and authentically promoted the perfume. And the moment he put the story, for the next 5 days, he gave us lakhs in sales. And that's a very huge sales for a D2C small brand, right? So yes, they have 100% impact on the sales of the brands. As we know that all your fragrances are imported, if someone here is watching who wants to start their own fragrance brand, so and who wants to not manufacture their fragrances in India, what is the procedure like? Can you explain that? सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है भाई, आपको अगर ब्रांड स्टार्ट करना है ना, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओ. इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. मैंने भी सच में फन में फैंसी चीज़ समझ के ब्रांड स्टार्ट कर लिया था, बट द स्ट्रगल एंड the time I went through and I'm going through is something you have to. अगर आप गिर रहे हो ना तो आपको उठना ही पड़ेगा. You cannot just go back. It's a दलदल, ठीक है. आप जा ही नहीं सकते वापस. आपने अगर पैर डाल दिए दलदल में तो आप जाओगे आगे ही जाना रास्ता है, और रोके जाओ हंस के जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है. तो एक डिस्क्लेमर है, ब्रांड स्टार्ट करने से पहले आप बहुत श्योर हो जाओगे यार आपको ब्रांड स्टार्ट करना है. इट्स नॉट लाइक यार मैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए डाल लेता हूँ, देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो कुछ और कर लूँगा. क्योंकि वंस यू गेट इनटू दिस ना, देयर आर लॉट ऑफ क्रेडिट विच हैपन्स कि यार आपने किसी को उधार पे दे दिया, आपने किसी को उधार से लिया, तो वो साइकिल में आप फंस जाते हो, आपको रिकरिंग साइकिल में फंस जाते हो, ठीक है. और आप अगर एक चीज़ स्टार्ट करके भी आगे जा रहे हो और वापस आ रहे हो, तो क्या पॉसिबिलिटी आप दूसरे में सक्सेसफुल हो जाओगे. कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है, ठीक है. मतलब ये मैंने हार्ड एंड लेसन है मेरे. मैं बहुत बार सोचता हूँ कि आई शुड क्विट यार, नहीं हो रहा. बट व्हेन आई सी माई सेल्फ, व्हेन आई क्लोज माई आइज, मैं देखता हूँ यार 5 साल पहले शशांक, आज तू जहाँ पे, अगर मैं ये तेरे को पिक्चर दिखा दूँ 5 साल पहले, तो स्टिल यू वुड वांट टू क्विट. आई फील वेरी ब्लेस्ड कि यार वेयर आई एम टुडे, ठीक है. अब आप ये सोचो ना कि यार इंडिया के रिचेस्ट इंसान को भी वर्ल्ड का रिचेस्ट बनना है. देयर इज़ नो एंड. अब वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान को भी मार्स पे जाना है, भूख तो ख़त्म नहीं होगी, राइट. तो मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड कमिंग बैक टू ए क्वेश्चन, किसी को फ्रेग्रेंस ब्रांड स्टार्ट करना है यार, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा क्लटर हो रहा है मार्केट. देर आर मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल नीशेस विच आर अनटैप्ड, ठीक है. आई वुड सजेस्ट देम कि यार वो रिसर्च करो कि क्या नहीं है. जो बिक रहा है उस भीड़ में घुस जाओगे तो आप भी बेच लोगे, बट यूनिक नहीं बन पाओगे, वन ऑफ अ काइंड नहीं बन पाओगे. माई पर्सनल मेंटालिटी इज यू शुड बी वन ऑफ अ काइंड, यू शुड बी रिकग्नाइज्ड. यार आज फ्रिज बोलते हैं तो यार फ्रिज वॉज द फर्स्ट रेफ्रिजरेटर कंपनी, ठीक है. आज कोलगेट बोलते हैं, हम टूथपेस्ट नहीं बोलते. तो दे आर नोन फॉर दैट कि यार कोलगेट बोल रहा है, आप टूथपेस्ट नहीं. मतलब उन्होंने ऐसी पोजीशनिंग करी है. अगर हमें पेप्सी भी पीनी है, हम बोलते हैं कोक पीनी है ना, कोका कोला. तो दे पोजीशन देमसेल्फ कि बी वन ऑफ अ काइंड. मतलब आप कुछ ऐसा करो, ये नहीं कि यार ये परफ्यूम, यार मतलब XYZ परफ्यूम ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है तो यार मेरे को भी करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो परफ्यूम ब्रांड को लेता हूँ. खोलो अगर आप बहुत श्योर हो कि आप परफ्यूम में नया क्या कर सकते हो. मतलब 10 परफ्यूम है 1000 रुपए के, तो आपका ही क्यों खरीदूं मैं. अगर आप इतने श्योर हो इस आंसर को, बिना सोचे आंसर कर सकते हो मेरा परफ्यूम ही क्यों, तो आप 100% परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करो. आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मुझसे कोई पूछता है कि यार 1000 परफ्यूम्स है, मैं तेरे परफ्यूम लूँ, मैं बोलता हूँ ना यार तू गुची यूज कर रहा है, नहीं अफोर्ड कर सकता डेली गुची, तो तू ये क्या लगाएगा तू. मतलब 50 रुपए का परफ्यूम लगाएगा, 1000 रुपए का. कोई डेली तो परफ्यूम चाहिए ना, या फिर डेली बिना परफ्यूम के रहेगा तो भी ओके है. तो आई एम केटरिंग दैट मार्केट हु इज using luxury or niche occasionally but wanna feel premium daily. So if you have the answer कि यार तू किस लिए brand start कर रहा है, don't start the brand just for the sake of it. You will fall. Even after you are confident about your idea, you would still fall. But you just have to get back. Is the main kick.
which I am also learning hard ways. Every day is day one. Every day, yeah, exactly. It's my motto. So like how do you get your oils imported, then bottled here, and what's the यार there are process? multiple ways. I started with कि यार मेरे को बॉटल की कैप भी इंपोर्ट खुद करनी है. मतलब इसे माइक्रो मैनेजिंग बोल लो या इसे एक एक्साइटमेंट बोल लो या इसे एक बहुत स्पेसिफिक परफेक्शनिस्ट बोल लो. मैं बहुत ऐसा था कि यार कैप भी खुद इंपोर्ट करूँगा, बॉटल भी खुद इंपोर्ट करूँगा, बॉटल की फिनिश क्या है वो भी मैं ही चूज़ करूँगा, लेबल क्या है, लेबल का टेक्सचर क्या है, बॉक्स की फिनिशिंग क्या है, फ्रेग्रेंस की इक्वेशन क्या है ना, प्राइस पॉइंट क्या है, इंस्टाग्राम की थीम क्या है या फिर फॉन्ट क्या है, सब चीज़ मैं करूँगा. तो इस माइक्रो मैनेजिंग के चक्कर में ना आप प्रोडक्ट गाय बन जाते हो, आप बेचना ही भूल जाते हो. तो मैंने ये अपने लेसन से सीखा यार. मैं प्रोडक्ट में इतना घुस गया, मतलब आई एम वेरी गुड एट प्रोडक्ट, आई एम वेरी गुड एट परफ्यूम्स, राइट, बट मैं इतना ज़्यादा घुस गया, आई हैड टू फेस अ सिचुएशन, बना तो लिया, बेचेगा कैसे. तो मैंने लेसन सीखा है कि यार जो चीज़ आप डेलीगेट कर सकते हो ना आप करो. इफ़ यू कैन डेलीगेट योर वर्क, है ना, स्मॉलर टास्क को डेलीगेट करो. मेरे से अच्छा कोई फॉन्ट डिसाइड कर सकता है कोई और, मेरे से अच्छा कोई कैप कोई और चूज कर सकता है. अगर मैं यही करने लग गया तो व्हेन विल आई सेल, मैं कैसे बेचूंगा, है ना. तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन, सॉरी. What is the मतलब आपने जैसे your oils are imported, and then you bottle them over here. So procedure आपने पूछा था. The procedure is I would recommend go to a third party manufacturer. ठीक है, एक थोड़ा सा there are two types of third party manufacturers. There are 2-3 manufacturers who are very big shots. जिसके साथ हम काम कर रहे हैं. They are making perfumes for Miniso, Mamaearth, Bella Vita और every big brand you see in India. There are different kinds of manufacturers who are very small. बट उनकी क्वालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है. अच्छी क्वालिटी हो सकती है बट आपको स्किल्स होने चाहिए चेक करने के लिए इफ़ इट इज़ सर्टिफाइड और नॉट. तो आई वुड रिकमेंड अगर बजट कम है तो आप स्मॉल मैन्युफैक्चरर पे जाओ. MOQ कम होता है उनका, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत कम होता है, बट उसमें मेहनत आपकी एक्स्ट्रा होती है और आपके पास टाइम कम है. आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि यार मेरे को तो पता है क्या चाहिए, मेरे पास अभी वन शॉट पैसा है लगाने के लिए, तो आप बड़े मैन्युफैक्चरर पे जाओ. उनकी क्वान्टिटीज़ फर्स्ट ऑर्डर की बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इन थाउजेंड्स लैक्स ऑफ बॉटल्स होती है पर वेरिएंट, राइट. तो अगर आप वो मैच कर सकते हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप जाओ एक बड़े मैन्युफैक्चरर के पास. और बड़े मैन्युफैक्चरर को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, मतलब आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, किसी भी शेल्फ पे प्रोडक्ट को उठाओ. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. मैंने सारे दुनिया के प्रोडक्ट को उठा के पीछे मैन्युफैक्चर्ड बाय लिख लिया, एक एक्सेल बनाई, कॉमन नेम्स निकाले, टॉप 5 नेम को अप्रोच करना स्टार्ट करा. सबने रिजेक्ट करा. 6, 7, 8, 9, 10 को करना स्टार्ट करा. 6, 7, 8, 9, 10 से एक्सेप्टेंस आई, फिर 1 to 5 को दोबारा अप्रोच करा एंड उनमें से फिर एक को क्रैक करा. ऐसे करके आप, ऐसा कुछ नहीं है कि यार यू वुड वाना नीड हेल्प ऑफ समवन टू फाइंड द मैन्युफैक्चरर. सबसे बेस्ट हेल्प है कोई रैंडम प्रोडक्ट खरीदो, उठाओ, पीछे पढ़ो, फ़ोन करो, जाओ, जाके बैठो. कोई किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है. जाके 10 बार बैठोगे तो शायद एक बार आपको एंटरटेन कर लेंगे. तो दैट्स हाउ यू फाइंड द मैन्युफैक्चरर एंड रेस्ट द गेम इज़ देयर. मतलब आप उन्हें अपनी स्पेसिफिकेशन बताओ, अपना टेस्ट बताओ, सब बताओ, अपना कॉस्टिंग बताओ, प्राइस पॉइंट बताओ. दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, दे विल हेल्प यू फ्रॉम एंड टू एंड. आपको प्रोडक्ट बना के देंगे घर पे. तभी लुनेर के और गुची के परफ्यूमर्स सेम होते हैं. हाँ, सो बेसिकली सिमिलरली ग्लोबली, जैसे आई टोल्ड यू कि क्लब हाउस पे आई एम फ्रेंड्स विद परफ्यूमर्स फ्रॉम गुची, प्राडा, LV एंड स्टफ. And so globally there are 4 or 5 fragrance houses, so they hire perfumers in house, and all the brands, even Gucci, even Louis Vuitton, even Amouage, even Byredo, even Diptyque, even Lunaire, they go to these fragrance houses कि यार मेरे को ना ये परफ्यूमर स्पेसिफाई करना है, ठीक है, नहीं तो मेरे को ये परफ्यूम चाहिए, या तो इसकी इंस्पिरेशन चाहिए या मुझे कोई इंडिपेंडेंट क्रिएशन चाहिए अपने डेटाबेस में. तो द फ्रेग्रेंस हाउसेज गो टू दीज परफ्यूमर्स जिनको उन्होंने फुल टाइम हायर करा हुआ है टू गिव द प्रोजेक्ट ऑफ अ ब्रांड. तो वो परफ्यूमर को बोलते हैं मेरे पास एक लुनेयर ब्रांड आया है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये परफ्यूम आपको बनाना है. तो परफ्यूमर्स आर पेड बाय द फ्रेग्रेंस हाउसेज, ठीक है, एंड वी पे टू फ्रेग्रेंस हाउसेज. सो इट्स देयर जॉब एंड टू एंड, दे विल मेक द फ्रेग्रेंस according to our taste. They hire the perfumer, you hire the fragrance house. The fragrance house. Yeah, and that's how it works. और इसमें भी क्वालिटीज होती है, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरर, जैसी फ्रेग्रेंस हाउस की भी क्वालिटीज है. हजारों फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं, बट टॉप की जो 4 है जिनसे बड़े इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स काम कर रहे हैं, वो 3-4 ही है. और उसको भी ढूंढने का बहुत ईजी वे है. मतलब जैसे मैंने आपको मैन्युफैक्चर बताया, इट्स वेरी ईजी, इट्स नथिंग हार्ड. In the last 5 years, the perfume industry has been exploded immensely. Every other existing brand is entering into perfumes. New perfume brands are emerging every 6 months.
What is that one gap that is still left unexplored in the perfume industry? आई थिंक देर इज़ अ गैप विच वी आर ट्राइंग टू केटर. यार इंडिया में या तो 1,000 रुपये से नीचे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइट, या 3,000 से ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट कंज्यूमर्स हैव अ वेरी लिमिटेड चॉइस बिटवीन 1,000 to 2,500 और 3,000 प्राइस पॉइंट. And in this market only Zara, Titan, brands like these exist. They are very big players, but ये एक बहुत बड़ा untapped market है. So that is where we trying to operate. कि यार जो बंदा 8,000 रुपये का गुची अफोर्ड कर सकता है, आई कैन अफोर्ड 8,000 का गुची बट नॉट डेली. आई कैन अफोर्ड ओकेजनली कि यार मैं अगर 2 महीने में एक बार गुची लगा सकता हूँ. सो उस इंसान को एक अच्छा, एक वर्दी परफ्यूम डेली वेयर के लिए वो क्या लगाए, वो 800 रुपये का या 500 रुपये का परफ्यूम नहीं लगाएगा. अगर लगा भी रहा है तो उस एक परफ्यूम उसके लिए इनफ नहीं है. तो दैट इज द मार्केट वी आर ट्राइंग टू ऑपरेट इन. कि यार 1000, उसको एक 1000 से 2,500 के बीच में एक थोड़ा सा प्रीमियम परफ्यूम चाहिए. नॉट मासी, नॉट लग्जरी. लग्जरी ही इज यूजिंग ओकेजनली, बट मासी, सॉरी, प्रीमियम ही वांट्स टू यूज इट डेली. So this is an untapped market in the perfume industry right now. The sweet spot of 1,000 and 3,000. Yeah, but it is a sweet spot right now. But next 2 years you will see thousands of brand entering in that space. So we all know that in personal care, Forest Essentials has been like all the rage in terms of premium category of personal care. So do you see any perfume brand coming in the premium segment anytime soon and going at that level? 100%. From India. मतलब इंटरनेशनल लेवल. हाँ, मतलब in the premium segment, because I'm talking about वही 3K to 5K से start होता हुआ premium segment. 100%. Not one, multiple brands will go there because it's the time of India. In next 10 years you will see, because मैं आपको बताता हूँ, जब कोई नया D2C brand, जैसे मैंने आपको I told you about this fact previous in our conversation, some brands make perfumes for 1,800 but they sell it for 1,500 just to acquire the market. So लोग actually में जितनी value है उस product की उससे कम में बेच रहे हैं. तो why would people in next 10 years buy something because of the tag and pay premium for the brand? मतलब it's the era of homegrown. मतलब मैं खुद personally homegrown brands को promote करता हूँ. Reason being they actually give the value. They give value for money, right? So in next 10 years, 100% there will be a lot of brands going international, scaling big, and there are currently doing that as well. There are brands who have reached Dubai, Europe, US in last 5 years. Perfume brands? Yes. Bella Vita is one of them. They scaled massively, crazy. I'm very inspired by that brand. एक बात बताओ, जैसे आजकल everyone is so much into brand बनाना है. Why? Like what is the sudden rage all about brand बनाना है? जिससे भी पूछ लो. यार क्योंकि हर किसी के नेटवर्क में 1-2 बंदे तो हैं जो D2C के फाउंडर हैं. तो हर किसी को एक recognition is the biggest factor, I think. कि यार जो saying that I'm the founder and co-founder of a brand is very aesthetic in today's era. मेरे को ऐसा लगता है कि I've seen people यार जो एक इतनी मतलब बहुत small startup के लिए भी वैसे co-founder या founder लगा देते हैं. मतलब people would love to put founder and co-founder behind their name. तो ये एक हो सकता है एक reason. बट वैलिडेशन, एग्जैक्टली, उन्हें एक रिकग्निशन होती है कि हाँ यार मेरा भी एक ब्रांड है जिसका एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके एड्स चलते हैं, या फिर चाहे 3 महीने में बंद हो जाए, मतलब हो सकता है, मतलब ऐसे ना हो किसी का ब्रांड बन, बट है दिस इज द टाइम ऑफ होम ग्रोन. मतलब अभी ट्रेडिशनल बिजनेस आप देखो ना, जेप्टो, ब्लिंकिट आने के बाद बड़े से बड़े सुपर मार्ट्स बंद हो गए हैं. आप सोचो अब, मतलब बेस्ट वे टू अर्न मनी इज टू मेक कंज्यूमर्स लेजी. अगर आप कंज्यूमर को लेजी बना रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो. जेप्टो, ब्लिंकिट, आप कुछ भी एग्जैक्टली. पहले हम कपड़े जाके ऑफलाइन लेते थे, हम V3 जाते थे, या फिर हम मैनुअली जोमेटो से पहले मैनुअली कॉल करके रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करते थे. उबर से पहले हम कॉल करके ब्लैक कैब बुलाते थे, वेट करते थे. देयर वर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिफोर ऑल दिस, बट एवरी ब्रांड हु मेड बिग मनी इज बिकॉज दे मेड कंज्यूमर्स लेजी. मतलब दिस इज नॉट द राइट वे टू put it, but this is easy बना दी लाइफ. आप किसी की लाइफ इजी बना रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो, लेजी बना रहे हो, तो आप पैसा कमा रहे हो. उसको उधर से उधर उठ के ही जाना. एग्जैक्टली. तो अब सो इट्स कॉल्ड अ डेल्टा 3 चेंज इन स्टार्टअप इंडस्ट्री. अगर आपने डेल्टा 3 चेंज क्रिएट कर दिया, मतलब डेल्टा 3 चेंज मीन कि अब जेप्टो के बिना लाइफ नहीं हो सकती, आप जोमेटो, उबर के बिना लाइफ चेंज नहीं हो सकती. मतलब डेल्टा 3 चेंज मीन्स कि आपने चेंज को 3 लेवल पे क्रॉस कर दिया कि इट्स एन अनडन चेंज नाउ.
You cannot undo that change. So जिसने Delta 3 change कर दिया, they will make big money. Where do you see the next big opportunity in D2C? D2C big opportunity. I think men's makeup. Men's makeup. Men's grooming. Men's grooming से ज़्यादा makeup. Makeup is the wrong word, but product is same. अगर आप so men's grooming is a very big thing. यार आपने SRK बोला, SRK does makeup for the shoots. Biggest creators, smallest creators does makeup. Even I do use foundation and the pore minimizers and dark circles removers, beard patches and everything related. But when I call makeup तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार it's a feminine word. But अगर मैं उसे बोलूँ कि यार I'm using a tinted cream, है ना? I don't know how to market that, but there's a big opportunity in men's makeup industry. I have seen a lot of brands from the West who are doing amazing things. I think you only showed me one. Yeah, Warpaint for men. Yeah, it's a and one brand I saw that बिल्कुल वो लगता था ऐसे उनका कि इससे थोड़ा डेली का जैसे हमारे toilet cleaner types packaging थी उनकी, like not toilet cleaner but in that segment, but it was something जो आपको बहुत daily routine में gel हो जाए seamlessly, because it's called in the bathroom products, I think. So where do you see the consumer trend in the next 10 years? What exactly you mean by consumer trend? मतलब just जैसे अभी बहुत over consumption हो जा रही है, do you think कि ओवर कंजम्पशन का कोई फुल स्टॉप आएगा, रियलाइजेशन होगी लोगों को? आ सकता है नेक्स्ट 5-6 इयर्स तो नहीं, 5-6 इयर्स आई थिंक शायद नहीं हो, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने सीख लिया पैसा बचा के कोई सेंस नहीं है. तो पीपल आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन things which they don't even wanna buy and wanna try, right? True. They're just doing it for FOMO. They're just doing it because someone in their circle are using that, or some inspirational person is using that, right? तो अभी तो people are blindly spending, right? और जब से UPI and stuff आए, it's very easy to spend. आपको सिर्फ एक क्लिक में पैसे मिलेंगे. Yeah, exactly. So अभी 5-6 years I don't think so कि people would wanna realize कि they are spending, overspending, right? जब थोड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होगा कि जैसे अब स्टार्टअप कल्चर में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया फंडिंग का. अभी लास्ट 5-7 ईयर्स वर क्रेजी यार, हर किसी को इतनी स्टार्टअप फंडिंग मिल रही थी टर्नओवर बेसिस पे, वैल्यूएशन बेसिस पे, तो एवरीवन वाज फंडिंग. अब इन्वेस्टर्स को पता है कि यार टर्नओवर के बेसिस पे उनको रिटर्न नहीं मिल रही है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे लाइक स्टार्टअप शुड बी प्रॉफिटेबल, ठीक है? तो अब एक नया कल्चर इवॉल्व हो रहा है कि टर्नओवर के बेसिस पे फंडिंग नहीं मिलेगी, आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे फंडिंग मिलेगी, ठीक है? सो एवरीवन हु इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, इवन एज अ कंज्यूमर, इफ यू आर ओवर स्पेंडिंग, यू वुड वन डे रियलाइज, 5-6 साल 10 साल, time is not sure, but you would realize you are doing wrong, right? That's the nature. All my answers and all my doubts and all the curiosity questions have been answered. Just I want to ask one last thing. What is the best piece of advice you have ever received? Best piece of advice I have ever received. I don't think so I would want to pass that, but I would want to give an advice by myself. यार जस्ट गिव बैक. वी आर वेरी ब्लेस्ड, एवरीवन इज़ वेरी ब्लेस्ड. अगर आपको खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है और रहने के लिए घर है ना, तो यू आर इन टॉप 5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अब जस्ट गिव बैक. वट एवर यू डू इन लाइफ, जस्ट गिव बैक एंड बिलीव इन गॉड. यू आर हेयर फॉर अ रीज़न, यू आर हेयर फॉर अ टास्क. आपकी एक ड्यूटी है इस दुनिया में आने के बाद, विच इज़ जस्ट गिविंग बैक and go back to the super soul. This is your duty, spiritual duty, and materialistic duty is to give back. This is at least my advice to everyone. I think we should do an episode 2 very soon. जब थोड़ा हम इसको और just because को explore कर पाए, because Definitely. I have a feeling कि आपसे मुझे और conversations करके audience को मजा आएगा. 100%. So, but thank you so much for your time. Thank you. And I hope the viewers and the audience got something out of it. At least I did. And thank you so much for watching. And stay tuned for the next episode as we release new episodes every week.